everyone. Let's talk about something very important yet effective thing today. Let's talk about some questions patterns which are related to how. जब भी हम questions पूछते हैं and it is all related to how, let's talk about that today in today's video. Here, first pattern is all about how much. Generally we get confused how much और how many कहाँ use किया जाता है. So let me clear the difference in this video. How much we use when something is non-countable. वैसे तो सब कुछ ही काउंट किया जाता है, बस उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाती है. सो व्हेन यू आर काउंटिंग समथिंग एंड इट्स क्वांटिटी इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल वाटर काउंट कर सकते हैं, बट वी कांट से 1 वाटर और 2 वाटर, वी से इट in liters. If I talk about rice, wheat, we can count it, but in kgs. We don't say 1 rice, 1 wheat, right? So when we are talking about all such things, we can count them but in different quantity. So there we can talk about much. How much? For example, how much dash do you have? First pattern of how much, where you are talking about आपके पास ये कितना है. For example, how much time do you have? आपके पास कितना टाइम है. Now when you talk about time, आप ऐसे नहीं बोलते एक टाइम दो टाइम. What do you say? 1 hour, 2 hours. So you are telling in hours, minutes, right? And let's talk about another example. How much money do you have? आपके पास कितने पैसे हैं. Now money is also countable, but we count it in rupees, pounds, dollars. So how much money do you have? Another example is how much experience do you have? आपके पास कितना experience है. And when you count experience, how do you count it? In years, months, right? So all these things are countable, but their unit is different. So how much we use for non-countable things. Another situation where you can use countable for telling the presence of something, presence or existence. For example, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ हम मच नहीं लगाएंगे. बट इफ़ आई से बॉटल में कितना पानी है, डू यू काउंट वाटर इन लीटर्स, राइट? सो विल से हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बॉटल. सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न है प्रेजेंस को शो करने के लिए कि हमारे पास वाटर है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हाउ मच पेट्रोल इज़ देयर इन द कार. कार में कितना पेट्रोल है. सो पेट्रोल की प्रेजेंस को शो कर रहा है. एंड अगेन पेट्रोल इज़ नॉट काउंटेबल. अनदर एग्जाम्पल, हाउ मच जूस इज़ देयर इन द जार. अगेन जूस इज़ ऑल्सो काउंटेबल इन लीटर्स. सो all these things when you are counting but in unit, or when something is non-countable, in that case we can use much. So how much we have used in two situations. One, आपके पास कितना है, how much dash do you have, and second one was how much dash is there in the dash. So when you are talking about presence or existence of something. So that was all about how much. Let's move to how many. How many we use in countable things. गिन सकते हैं और उनकी यूनिट भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, स्टूडेंट्स. सो ये सब आप इन्हीं टर्म्स में ही काउंट करेंगे. लाइक अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपके पास ये कितना है, हाउ मच की जगह अब यूज़ करेंगे हाउ मेनी डैश डू यू हैव. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, यू कैन काउंट फ्रेंड्स. आई हैव 2 फ्रेंड्स, राइट? सो फ्रेंड्स का आंसर भी फ्रेंड्स में ही आ रहा है. सो हेयर वी आर यूजिंग हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, एंड आई से आई हैव 5 फ्रेंड्स. सो सेम आंसर, सेम यूनिट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव. उसके पास कितनी कैंडीज है, एंड देन ही कैन से आई हैव 10 कैंडीज. सो कैंडीज का आंसर भी उसी टर्म में ही आ रहा है. अनदर एग्जाम्पल इज हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव. अगेन पेन इज ऑल्सो काउंटेबल. सो फॉर काउंटेबल थिंग्स वी आर यूजिंग हाउ मेनी. नाउ वी कैन यूज इट फॉर शोइंग प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑल्सो, द वे वी यूज मच. सो इफ आई से हाउ मेनी डैश आर देयर इन द डैश. फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, यू कैन काउंट मेम्बर्स. So we'll say how many members are there in your family. How many pages are there in the book. Book में कितने pages हैं, we can count it. How many students are there in the class. Class में कितने students हैं. So all these things are countable in the same unit. So there we are using how many. So I hope you are clear with the difference of how many and much. Many we are using for countable and much we are using for non-countable. And here countable and non-countable simply means when you are counting in different units. Let's talk about another patterns of how. Another one is how long. It simply means कितना समय लगता है. जहाँ भी आप बोलते हो कितना टाइम लगेगा, आपको ऐसा करने में कितना टाइम लगा. So जब भी आप किसी से पूछना चाह रहे हो कितना टाइम, so वहाँ पर हम यूज़ करेंगे how long. Generally people say how much time, वो भी ठीक है.
सो बेटर लैंग्वेज में हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग. नाउ इफ़ आई हैव टू आस्क क्वेश्चन विद हाउ लॉन्ग इन प्रेजेंट, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे डज. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एंड देन योर फर्स्ट फॉर्म. सो इफ़ आई आस्क आपको दिल्ली पहुँचने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली. इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश. If I have to ask the same question in past, so I'll use did instead of does. How long did it take to first form? For example, आपको प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगा, how long did it take to complete the project. और इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा, how long did it take to learn English. Same questions if we have to ask in future, so we'll say will plus first form. For example, how long will it take to dash. For example, आपको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक. और वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर. सो कितना टाइम के लिए हेयर वी हैव यूज्ड डज, डिड एंड विल फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. लेट्स मूव टू अनदर पैटर्न विच इज़ ऑल अबाउट हाउ फार. फार वी यूज़ हेयर फॉर द डिस्टेंस. जब भी आप किसी चीज़ से पूछते हैं कि ऐसा ये कितना दूर है, दूर के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हाउ फार. फॉर एग्जाम्पल, हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम. आपके घर से आपका ऑफिस कितनी दूर है. सो कितनी दूर के लिए वी आर यूजिंग हाउ फार. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, हाउ फार कैन यू किक दिस बॉल. आप इस बॉल को कितनी दूर तक फेंक सकते हो. हाउ फार आर वी फ्रॉम आवर होम. हम अपने घर से कितनी दूर हैं. जब हम चल के जा रहे हो तो जनरली हम पूछते और कितना चलना पड़ेगा. सो हाउ फार डू वी हैव टू वॉक. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पैटर्न विद हाउ. दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ ऑफन डू यू. ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर. जब भी आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप ये काम अक्सर कितनी बार करते हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाउ ऑफन. फॉर एग्जाम्पल, आप सिनेमा कितनी बार देखते हो, मूवीज़ कितनी बार देखते हो. सो हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा. और आप टीवी कितनी बार देखते हो, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी. आप बुक्स कितनी बार पढ़ते हो, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स. सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल सच सिचुएशन जहाँ पर हम अक्सर की बात करते हैं, सो देयर वी यूज़ हाउ ऑफन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैटर्न्स वेयर वी टॉक्ड अबाउट हाउ. सो हाउ से जब भी क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, सो वी विल यूज़ ऑल दीज पैटर्न्स एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू and very important. So use these patterns and make your English impressive.